Good morning, everyone. Till now, we have completed chapter 2, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 15, probability. Probability, what do we mean by probability? We already have done few, just little part of this chapter in our previous class also. This was one of the exercise in that chapter in class 8. And now we have to do this complete chapter of probability. Easiest chapter, nothing to worry. First of all, you will have to tell me what do we mean by probability. Probability means chances. Yes, probability means the chances, right? तो किसी भी चीज के होने के ना होने के कितने चांसेस हैं उसको हम probability बोलते हैं. ठीक है. अब मुझे ये बता दो कि आपकी probability जो होती है उसका फॉर्मूला आपको याद है? Chances or doubt, yes. Do you remember the formula of probability? आपको एक वर्ड और भी बताया था. That was experiment. What is an experiment in terms of maths? Chances upon total. Favorable outcomes upon total number of outcomes. देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की. In mathematics, experiment means any action we are taking and we know about its results prior. ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. That is called an experiment, right? Just like we did that, if we toss a coin, then we know that only head or tail, these two can be the outcomes. So we are very well aware about the outcomes, right? So we will say that tossing a coin is an experiment. Rolling a dice. In case of rolling a dice, आपके जो outcomes होते हैं, either you can get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. ठीक है, तो rolling a dice is also an experiment. ठीक है, random experiment बोले, experiment बोले, one and the same thing. ठीक है, okay. ये मैंने क्या लिखा है? When I write all the possible outcomes in curly brackets, then this is called, what is this called? Hurry up, waiting for your replies. When we write all possible results of, yes, Omang बिल्कुल ठीक है, not outcomes. जब आप इसको curly brackets के अंदर लिख देते हैं, then this is called sample space. ठीक है, sample space. तो मेरा tossing a coin, इसका sample space है h, t, और इसके अंदर sample space है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 within the brackets, right? तो sample space के बाद हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी होती क्या है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, दीज आर द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. कि आपके सैंपल स्पेस के अंदर कितने लिखे हुए हैं वो हमारे टोटल आउटकम्स है. फेवरेबल मींस व्हिच आई वांट, व्हिच आर इन माय फेवर, द आउटकम व्हिच आई वांट दैट इट शुड कम. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ बेट विद माय फ्रेंड and we are tossing a coin, I demand for head, right? So in that case my right, and total outcomes will be head and tail. Total outcomes are 2 and is 1. So the probability will be favorable upon total, that is 1 upon 2. ठीक है, favorable upon total. अब मुझे ये बता दो that if I tossing,
This is the sample space when when I roll a dice, right? Okay, now you have to tell me the probability of getting an even number. What will be the probability? Yes, the probability will be 1/2. Total favorable outcomes are, what are the favorable outcomes? We want even numbers. So total 3 even numbers, 1, 2, and 3. And total outcomes are 6. So the probability will be favorable upon total, means 3/6, that is 1/2. Right? Okay. If I want the number to be a prime number, in that case, what is going to be the probability? It should be a prime number. Yes. Probability here also, the probability will be 1/2. What is the probability of getting the prime numbers? Prime number आपके पास है 2, 3 and 5. So 3 prime numbers are there. 3 are favorable, 6 are total. Probability is again 3/6, that is 1/2. Now tell me, what is the probability of getting a composite number? Yes, right. उमंग, राघव गलत है. यशवी करेक्ट, परिधि करेक्ट, कनिका रॉन्ग, हर्ष कंडोल ठीक है. In this case, you will have how many composite numbers? 4 and 6. 2 composite numbers are there. Composite numbers are those numbers which come in which have more than 2 factors. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. 1, 2 and 4, 3 फैक्टर्स आर देयर. 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. 1, 2, 3, 6. So 4 factors are there. तो ये दोनों हमारे composite numbers हैं, right? 1 we cannot say that this is a composite number. Simran, please write whatsoever the problem you are facing. 1 is not considered as prime number. Yes, this is what I am telling you. 1 is not a composite number. Composite numbers आपके वो होते हैं जिनके factors आपके 2 से ज्यादा होते हैं. ठीक है, और 1 का सिर्फ एक ही factor है, that is 1. In case of 2 we have 2 factors, 1 and 2. 3 के भी 2 factors हैं, 1 and 2. जिसके 2 factors होते हैं वो prime number होता है. जिसके 2 से ज्यादा factors होंगे वो composite number होंगे. जिसके 2 से कम फैक्टर है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है. Therefore, more than 2 factors, it is a composite number. 2 factors only, 1 and 5, so this is a prime number. 6, more than 2 factors, so this is a composite number, right? Okay, चलिए, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन इसके. ये तो हमने कर लिए when we are rolling a dice. ठीक है, अब मुझे ये बता दो, हम ये कह रहे हैं कि फेवरेबल और इधर टोटल, क्या फेवरेबल हमारे टोटल से ज्यादा हो सकते हैं? हमने चूज कहाँ से करने हैं? जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे उसी में से ही तो चूज होंगे जो हमारे पास सैंपल स्पेस है. ठीक है, तो हमारे फेवरेबल कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? दैट मीन्स जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा. आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? सो दे कैन बी इक्वल. यस, दे कैन बी इक्वल. फेवरेबल आपके बिल्कुल जो आपको चाहिए हो सकता है सारे के सारे आ जाए. इफ आई एम सेइंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं कह रही हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, in that case your favorable outcomes will be all the 6 numbers. ठीक है, सारे के सारे 7 से छोटे हैं. In that case the probability will be 1, right? Yes, okay. Then we are coming, अब मैं कुछ यहाँ पे probabilities लिख रही हूँ. You have to tell me कि वो probability हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है. 4/3, can it be the probability? No, it cannot be the probability. Okay, if I write 3/4, will it be the probability? Yes, it will be, because numerator is less, denominator is greater. In this case, numerator is greater, so this is not the probability. अच्छा, अब आप कह रहे हो कि आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? If I say
my total outcomes are 4. ठीक है, what can be the maximum value over here? Yes, the maximum value can be 4. फेवरेबल हो सकता है, आपके सारे के सारे फेवरेबल हो जाए. और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? What can be the minimum value for favorable outcomes? It will not be 1, it will be 0. हो सकता है आपके फेवरेबल कोई भी ना हो. ठीक है, आपके फिर से डाइस वाले एग्जांपल ले रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 and I want that the number which is coming on the dice should be negative. So in that case favorable कितने हो जाएंगे? In that case favorable will be 0 because no any number is negative on the dice. So in that case you can say that the minimum value of favorable outcomes can be 0 and maximum value can be 1. So minimum probability ये हो सकती है, maximum probability ये हो सकती है. What is this equal to? This is equal to 0. 0 upon something is 0 and 4/4. ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? This is equal to 1. तो आपकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है. सो वी आर डिफाइनिंग हियर द इंटरवल ऑफ प्रोबेबिलिटी. इंटरवल का मतलब होता है जिसके बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी. तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में. सो अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी विल से फ्रॉम 0 to 1. तो आपके 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. 0 से कम आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव. ठीक है, आपकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. आपकी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, सो देयर इज द इंटरवल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर 0 और 1 तक की वैल्यूज ही अलाउड हैं. इससे ज्यादा इससे कम कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं है. राइट, few more probabilities I am writing here and you have to tell that whether they can be the probabilities or not. 9 and 1. What do we mean by 9 and 1, Shreya? Okay, I am writing here now 0.23. Can it be the probability? Yes, it will be the it can be the probability because it lies between 0 and 1. 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है. Right? If I say minus 0.3, can it be the probability? It cannot be the probability. 1.6, can it be the probability? No, it cannot be. Then 0. Yes. 1.0. Yes, 1.0, it can be the probability because this is 1 only. 0, this can also be the probability. Clear? So ये हमारी values probability की जो हम कह रहे हैं कि ये values हो सकती हैं, right? उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो probability होती है that is of 2 types, right? Probability, we can have 2 type of experiments. We can find out 2 type of probabilities, and these probabilities are, one is statistical probability and the other one is classical probability. 1.6 cannot be the probability because 1 से बड़ी value probability की नहीं हो सकती, right? Okay, चलिए. Now my question, I am saying that we have 2 type of probabilities, statistical probability and classical probability. ठीक है, do anybody know? Ma'am, 0 is not negative, not positive. So 0.2 can be the probability. Dev, decimals में कभी probability नहीं होती है क्या मैम? होती है बेटा, decimals में probability होती है आपकी. मैंने अभी लिखा 0.23 सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था, मैंने कहा था ये probability है या नहीं है. So it will be the probability because it lies between 0 and 1. आपके पास अगर probability 1/2 आ रही है, can't you write it as 0.5? ठीक है, तो चाहे आप डेसिमल्स में लिखें या फ्रैक्शंस में लिखें. फ्रैक्शंस में जब लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए. एंड व्हेन यू आर राइटिंग इन डेसिमल्स देन यू हैव टू टेक केयर दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, राइट?
-0.2 is not possible because negative numbers are not allowed in the probability. देखो favorable outcomes, total number of outcomes आपके नेगेटिव नहीं हो सकते ना, हमारी तो सिर्फ काउंटिंग है। बताओ यहाँ पे कितने हैं ऐसे जो प्राइम से जो प्राइम नंबर्स हैं, तो हम अपनी काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देन आल्सो वी स्टार्ट आवर काउंटिंग विद 1, तो उसमें नेगेटिव तो आता ही नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। मैम विच वी आर गोइंग टू डू 0 पॉइंट क्यों नहीं होती? 0 पॉइंट क्यों नहीं होती मीन्स 0 क्यों नहीं होती? 0 तो होती है प्रोबेबिलिटी। देव आप एक बारी हैंड रेज करोगे? 0.2 क्यों नहीं होती? होती है 0.2 बेटा, 0.2 तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हो, मतलब आपके पास टोटल 10 आउटकम्स हैं, आपके फेवरेबल 2 है। सो 0.2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी। रोशनी क्या कह रहे हो आप प्लीज? यस मैम 0 हम ना तो नेगेटिव लेते हैं ना तो पॉजिटिव लेते हैं। यस सो मैम हमने जब साइन लगाया -0.2, तो वो पॉसिबल थोड़ी है नंबर। -0.2 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। -0.2 इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। बेटा 0 नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता ना, उसके साथ जब 0.2 मिल गया सो ये तो अब आपका नंबर बन चुका है। ठीक है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0। हम अगर सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ना कि वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके मैम, इज दिस क्लियर और एनी डाउट इज लेफ्ट? क्लियर मैम। श्रेया? ओके, थैंक यू। श्रेया? No problem. Okay. I hope it is clear to you, or you want more examples for the probability that it can be or it can be not. It cannot be. Clear. Okay. Chaliye, then we are talking about now statistical and classical probability. But a statistics आपकी वो branch होती है which deals with the data. ठीक है, जो हम डाटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेली मार्क्स वाली जो आप टेबल बनाते थे, वो सारा हमारा क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग मींस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अभी तक हम इस चैप्टर को डाटा हैंडलिंग के नाम से एक चैप्टर अलग पढ़ते थे, बट नाउ ऑनवर्ड वी विल नॉट हैव दिस चैप्टर नेम डाटा हैंडलिंग। 9th onward data handling comes under the topic under the chapter statistics, right? तो statistics वो चीज है जहां पर हम डेटा की बात करते हैं, टेबल्स की बात करते हैं। yes, medians are statistical chances of tossing coin and dice are no ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिस्टिकल है और वो क्लासिकल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं अपनी टेबल के बिहाफ पे, देन दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास डाटा गिवन नहीं है, when you are not given the data and you have to tell the probability, in that case your probability will be classical. ऐसे clear नहीं होगा, just giving you the example. Again taking the example of tossing a coin. ये मेरे पास head है, ये tail है. What is the probability of getting a head if I toss a coin? 1/2 होती है। 1/2 is the probability when you are tossing a coin and you want a head. और अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके पूछती हूँ। मेरा क्वेश्चन अब ये हो चुका है that I have tossed this coin 200 times, ठीक है, और 200 टाइम्स टॉस करने में मेरा 175 टाइम्स हेड आया और जो मेरा टेल था वो मेरा 25 टाइम्स आया, राइट? एंड आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसको दोबारा से कॉइन को टॉस करूंगी तो उस टाइम पे मेरे पास हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उस टाइम पे हम अब जो अपना आंसर देते हैं वो यहाँ से देंगे कि मेरे पास टोटल हेड कितने हैं। आई हैव 175 हेड्स
and total outcomes means total number of trials 200. ठीक है, तो मेरे पास परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 175 अपॉन 200, देन यू आर गोइंग टू कैंसिल इट. ठीक है, 25 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर भी आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है. हेयर ऑल्सो यू आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. देयर इज द डिफरेंस. ठीक है, why is this difference? Because we have opted two different methods, right? When we predict the probability, when we predict the result on the basis of data we have, that is called your statistical probability. And when we predict the result just on the basis of not on the basis of data, we are just talking generally, right? When you will toss the coin, then what will happen? तो उसमें हमारे पास पीछे का कोई रिजल्ट नहीं है जिसको हम कंसीडर करके अपना आंसर दे सकें. So in that case, your probability will be classical probability. And when you are defining, you are telling the results on the basis of data you have, on the basis of statistical data. We can say the more accurate word is. तो statistical data के behalf पे जब आप अपने results बताएंगे, then it will be statistical probability. हाँ जी, ईशान. बोलो ईशान. Nothing to say, Shreya. मैम वो मुझे पूछना था कि श्रेया, इसको सिंपलीफाई करना जरूरी है जो हमारा फ्रैक्शन आता है प्रोबेबिलिटी निकाल के. हाँ बेटा, वैसे तो आपको सिंप्लीफाइड ही लिखना मैम, चाहिए, अदरवाइज नॉट गोइंग टू बी डिडक्टेड. यस मैम आपने कहा था 0 और 1 से बड़े. धीरे बोलो, धीरे, थोड़ा सा मुझसे थोड़ा सा दूर करके बोलो बेटा माइक. हाँ मैम आपने कहा था कि 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती. आपने लिख दिया 2/10. 2/10 लिखा ना बेटा, 2/10 लिखा मैंने. तो 2/10, अगर मैं कहती हूँ सिर्फ 2 लिख रही हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. बट आई रोट 0.2. 0.2 का मतलब हो गया 2/10. और वैसे 0.2 से ही क्लियर है ना कि ये नंबर आपका 1 से 0 से तो बड़ा हो गया. 0.2 है. देखो अगर आप ये नंबर लिख रहे हो, ये मेरे पास 0 है, ये 0.1, 0.2, 0.3, इधर लास्ट में जाके आपका 1 है, 0.9, 0.8, इस तरह से. तो ये नंबर 0 से तो बड़ा हो गया ना, और 1 से छोटा भी है. ठीक है, सो 0.2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी, बट 2 कैन नॉट बी. अगर सिर्फ 2 लिखते हैं तो ये नहीं प्रोबेबिलिटी हो सकती. ठीक है, कितना है ये तूने? चलिए, लेट मी कंटिन्यू नाउ. Let me continue. Okay, so now we are coming to the questions in the chapter. मैं सिर्फ कुछ questions करवा रही हूँ, उसके बाद आप continue करेंगे. The question is in a cricket match. The first question of exercise 15.1. In a cricket match, a woman hits a boundary 6 times out of 30 balls. Total balls are 30. और 6 times उसने boundary hit की है. Find the probability that she did not hit the boundary. So how many boundaries are here? 6 total balls, 30. Not the boundaries, because you want to find out the probability of not the boundaries. That is 30 minus 6, which is 24. ठीक है, and probability will be favorable upon total. Favorable आपके नहीं चाहिए boundary, so you have 24 favorable and total number of balls are 30. इसको आप cancel कर देंगे and you will get your answer to be 4/5. 6 से आपने cancel किया है, right? इतना बड़ा आपको हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ हर क्वेश्चन में ये लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स इतने, टोटल आउटकम्स इतने, is equal to favorable outcomes, total outcomes and your answer, right? अब एक चीज और यहाँ पे बतानी रह गई है, वो है आपकी probabilities का sum. Again, I am talking about the dice.
ठीक है, ये डाइस है, डाइस को मैंने सैंपल स्पेस टोटल 6 का है, राइट। यहाँ पर मेरे जो भी जितने भी आउटकम्स हैं, इन सब की मैं प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर रही हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? 1/6, क्योंकि मुझे 1 चाहिए और 1 मेरे पास सिर्फ 1 है और टोटल है मेरे पास 6, so the probability of getting 1 is 1/6. ठीक है, what is the probability of getting 2? बहुत सारे गलत आंसर्स आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 का मतलब है मेरे पास यहाँ कितने 2 हैं, हाउ मेनी 2s आर है, ओनली 1, so favorable is 1 and total are 6, so the probability of 2 is 1/6, not 1/3। 2/6 नहीं होगी बेटा, आपको 2 नंबर चाहिए, ठीक है, तो 2 नंबर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आ रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3? 1/2. 1/3। 3 की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6, ठीक है, और टोटल कितने हैं 6, तो फेवरेबल तो 1 है ना, आपको 3 चाहिए। 3 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दैट इज फेवरेबल, राइट। सो दिस इज ऑल्सो 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4? 4/6 तो नहीं है ना अब किसी का, 2/3 तो किसी का आंसर नहीं है। यस, now probability of 4 is 1/6 and the probability of 5 is also 1/6, right? अब मुझे ये बता दो, ये मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, एक 6 की रह गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज ऑल्सो 1/6। अब अगर मैं इन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करती हूँ, what I am going to get the answer? Probability of 1, probability of 2, probability of 3, 4, 5 and 6. I am adding all the probabilities. What I am going to get? I will get 6/6, that is 1. 1/6, 1/6, 1/6. How many times? 6 times it will come. So 6 times, because denominator is same, so numerators will be added. So you will get 6/6, that is 1. ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, सारे एक्सपेरिमेंट, सारे जो आपके आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हो गया 1। ठीक है, अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट अपने टॉसिंग अ कॉइन के लिए करती हूँ तो I will get head and tail. What will be the probability of head? Head and tail. Probability of head is 1/2. Probability of tail is also 1/2, and sum of their probabilities is 1/2 plus 1/2, 2/2, that is 1. ठीक है, okay. मैंने एक ही जगह 2 कॉइन ले ली। I have taken 2 coins now. What can be the outcomes? फटाफट से मुझे लिख के बता दो। फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हैं और कौन कौन से हैं? सैंपल स्पेस लिखो जल्दी से। 2 coins are tossed. Yes, 4. TH, HT, TT, HH. Yes, यशस्वी, यशवी, उमंग, ठीक है। विचित्र गलत है आपका बेटा। 4 आउटकम्स हैं, बट वो है कौन कौन से? एच एच हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और वी आर सेइंग टेल टेल। ठीक है, हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2 हेड होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ आपने ये ऑब्जर्व करना था कि जब भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तो उस केस में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री मतलब जो हमारे करते ही हमारे दिमाग में आते हैं कि ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो एक चीज और, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी
और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम भी हमेशा 1 होता है, राइट? मैं कहती हूँ कि मेरे पास हेड और टेल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड? 1/2. What is the probability of not getting the head? This will also be 1/2. ठीक है, फिर से मैंने लिया 1 2 3 4 5 6. What is the probability of getting 1? Probability of getting 1 is 1/6. What is the probability of not 1? 5/6. क्योंकि नॉट 1 का मतलब ये है कि 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है. सो वी हैव 5 आउटकम्स है फेवरेबल अपॉन 6. एंड व्हाट इज देयर सम? Their sum is 1/6 plus 5/6, that is 6/6, which is equal to 1. तो किसी भी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी इसका सम हमेशा 1 रहता है. मुझे जल्दी से टाइम खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन का आंसर दो. मेरे पास है एक काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0.76 probability. What is the probability of an experiment? What will be the probability of not the experiment? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. आप नॉट निकालने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज 0.24. नहीं बेटा, 1 से डिवाइड नहीं करना है अब आपने, आप सीधा इसको 1 से माइनस ही कर दोगे कि आपने होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया. यू आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, राइट? सो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है. You will try the questions and tomorrow we will continue with the questions, right? Let me end the class here. Thank you and have a nice day.